صحت کے ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی میں کلورین کی آمیزش کو تو بآسانی شناخت کیا جا سکتا ہے، مگر فینائل کی آمیزش کا پتہ لگانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ واٹر بورڈ نے شہریوں کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ واٹر بورڈ کی جانب سے پانی میں فنائل ملانے کا انکشاف، لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں۔ جامعہ کراچی بین الاقوامی مرکز برائے کیمیائی اور حیاتیاتی علوم کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری کا کہنا تھا کہ پانی میں فنائل کا استعمال سمجھ سے باہر ہے۔ دنیا بھر میں فنائل کا استعمال ختم ہو رہا ہے، بدقسمتی سے یہاں پانی میں ملایا جا رہا ہے۔ مجھے ایک تو یہ حیرت ہوئی کہ پانی کے اندر فینول ملایا جا رہا ہے، اس کا کوئی آبجیکٹو نظر نہیں آتا، کیونکہ فینول ویسے بھی کلورین کے مقابلے میں زیادہ ایکسپینسو ہے، اور اس کو اور اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ آپ ڈرنکنگ واٹر میں فینول کو ایڈ کریں، اور اگر اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہو تو بہت سارے اس کے ایفیکٹس ہیں۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے سربراہ ڈاکٹر رفیق کا کہنا تھا کہ کلورین کی پہچان تو ہو سکتی ہے، مگر فنائل کا کوئی عام انسان اس کی پہچان نہیں کر سکتا۔ حاملہ خاتون اور بچوں کے لیے فنائل جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ساری نسل کے لیے نقصان دہ ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو فوری ناٹ اونلی وڈرا کرے، بلکہ جتنا پانی کر چکے ہیں اس کو بھی ڈی کنٹامینیٹ کرے، ختم کرے اس سے۔ ماہرین صحت نے ہدایت کی ہے کہ پانی کو ابال کر اس کا استعمال کریں اور پانی میں کلورین ملائیں تاکہ نیگلیریا سے بھی محفوظ رہ سکے۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ رابیل اشرف، سٹی 21۔ واٹر بورڈ کا پانی میں کلورین کی بجائے فینائل ملانے کا معاملہ KMC اسپورٹس کمپلیکس میں قائم سوئمنگ پول انتظامیہ نے وضاحت کر دی۔ کہا کہ پانی میں فینائل ملانا انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ہمارے سوئمنگ پول میں ہم روزانہ کلورین ڈالتے ہیں، فینائل کی پانی میں ملاوٹ ظلم ہے۔ یہ ہے بلدیہ عظمی کراچی کا سوئمنگ پول، جسے بین الاقوامی طرز پر بنایا گیا ہے۔ یہاں پانی کی تبدیلی روزانہ ہوتی ہے، جبکہ پانی میں دن میں 3 مرتبہ کلورین بھی ملایا جاتا ہے۔ کلورین کی ملاوٹ کے بعد سوئمنگ پول کے لائف گارڈ پانی کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تاہم ان دنوں ملک میں نیگلیریا کی بیماری کے سبب پانی میں زیادہ کلورین ملایا جا رہا ہے۔ لائف گارڈ کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے شہر کے لوگوں کا احساس ہے۔ میرا نام چننا ہے، لائف گارڈ ہوں میں یہاں پر۔ سوئمنگ پول ہم یہ صاف کرتے ہیں، کلورنگ وغیرہ ڈالتے ہیں، اور 3 دفعہ جو ہے کلورنگ کٹ کے ذریعے سے چیک کرتے ہیں، اور ہمارے بچے، یہ کراچی کے بچے ہمارے بچے ہیں، ہم ان بچوں کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں سوچیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصل ظفر نے کہا کہ پانی میں فینائل ملانا انتہائی خطرناک ہے۔ ہم اپنے پانی کا ریمانڈ ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں۔ یہ کراچی شہر کی بات ہے، یہ کراچی کے بچوں کی بات ہے، کراچی کے مستقبل کی بات ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے اس ڈوز کو ایکسس کیا ہوا ہے۔ ویسے نارملی ہماری 2 دفعہ ڈوز ہوتی ہے، ہم نے اس دفعہ اس کو 3 مرتبہ ڈوز کر رہے ہیں۔ ہم رات میں کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں اور شام میں کرتے ہیں، تاکہ حفظان صحت کے مطابق یہ پول چلتا رہے۔ واٹر بورڈ کی پانی میں فینائل ملانے کی ویڈیو نے شہر بھر میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ سندھ حکومت کو معاملے کا سخت نوٹس لے کر کارروائی کرنی ہوگی، کیونکہ ایسے عمل سے انسانی صحت کو شدید خطرات ہیں۔ جنید جاوید، سٹی 21۔ سندھ سرکار نے تجاوزات کے خاتمے اور پانی چوروں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کر لیا۔ پولیس، رینجرز، اینٹی انکروچمنٹ فورس اور ضلعی انتظامیہ مل کر مشترکہ کارروائی میں حصہ لے گی۔ پانی چوری اور تجاوزات کے خلاف کارروائی کے لیے چیف سیکریٹری سندھ سہیل راجپوت کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں کمشنر کراچی، سیکریٹری بلدیات، پولیس اور رینجرز حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں ملی ترقیاتی اتھارٹی، کراچی ترقیاتی اتھارٹی، KMC اور واٹر بورڈ کی زمین پر تجاوزات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں تجاوزات، پانی چوروں کو سخت سزائیں دینے کی حکمت عملی تیار کی گئی۔ چیف سیکریٹری سندھ نے غیر قانونی تجاوزات اور پانی چوروں کے خلاف FIR درج کرنے کی بھی ہدایت کی۔ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ غیر قانونی تجاوزات کے آپریشن کو بلا تفریق کیا جائے گا۔ شہر میں سب سے زیادہ پانی ضلع شرقی اور غربی میں چوری کیا جا رہا ہے۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کا بجٹ بھی بڑھایا ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس کو بھی مزید عملہ اور اختیارات دیے جائیں گے۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز احمد شیخ کی زیر صدارت کچرے سے بجلی بنانے کے منصوبے کا جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر توانائی نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے کراچی کے کچرے کو
ठिकाने लगाने में मदद ने कहा कि कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा सिंध हुकूमत का तरजीही मंसूबा है। मंसूबे में हायल रुकावटों को फौरी दूर किया जाए। 50-50 मेगावाट के 2 प्लांट्स की तकमील से कराची के अवाम को रिलीफ मिलेगा। इम्तियाज शेख ने यह भी कहा कि अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी हमारा मिशन है, जबकि मंसूबे की तकमील से कराची के कचरे को ठिकाने लगाने में भी मदद मिलेगी। सिंध सरकार ने मजीद 500 पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। पीर को होने वाले सूबाई काबीना इजलास में पीपल्स इलेक्ट्रिक कार टैक्सी की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। सूबाई हुकूमत ने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ई कार्ड सिस्टम का काम फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। कराची के बासियों के लिए ट्रांसपोर्ट की झंझट से छुटकारे की उम्मीद सिंध सरकार ने मजीद 500 पीपल्स बसेस खरीदने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 5 जून को सूबाई काबीना का इजलास होगा। 13 नुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल इजलास में बसेस खरीदारी की मंजूरी ली जाएगी, जिसके लिए आइंदा माली साल के बजट में रकम भी मुख्तस की जाएगी। इजलास में पीपल्स इलेक्ट्रॉनिक कार टैक्सी और चीफ एग्जीक्यूटिव 2 अफसर इंश्योरेंस लिमिटेड की मदद में तोसी की मंजूरी ली जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शर्जील मेमन ने कहा कि मजीद रूट्स पर जल्द बसें चलाने का फैसला किया गया है। शर्जील मेमन ने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ई कार्ड सिस्टम का काम फौरी तौर पर मुकम्मल करने और पीपल्स बस सर्विस की एप्लीकेशन का काम भी फिलफोर मुकम्मल करने की हिदायत की। इन्होंने कहा कि पीपल्स बस सर्विस का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फौरी तौर पर फाल किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक बसेस के चार्जेस की कमी फौरी ख़त्म की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी न करने का ऐलान कर दिया। इरशाद बुखारी कहते हैं कि गिरफ्तारी कबूल है, लेकिन किरायों में किसी सूरत कमी नहीं करेंगे। गिरफ्तार करना है तो कर लो, किरायों में किसी सूरत कमी नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने 2 टोक ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी का कहना है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर हैं। हुकूमत हमसे किराए को कम करने की बात ना करे, हम सख्त परेशान हैं। हम भी ट्रांसपोर्टर भी तो आखिर इस महंगाई का शिकार हैं, लिहाजा हमें हुकूमत ने किराया दिया नहीं, तो लिहाजा हुकूमत या कोई हमसे किराया कम करने की बात ना करे। उसूली बात नहीं है, जब किराया कोई हुकूमत देती है तो फिर वापसी लेने की भी बात करे, हक बनता है। हम बहुत सख्त परेशान हैं, इन किरायों में भी हम चलाना मुश्किल हो गया हमारे लिए। इरशाद बुखारी बोले, गिरफ्तार करना है तो कर लो, मगर हम किरायों में कमी नहीं करेंगे। हमें भी गिरफ्तार करें, सारे ट्रांसपोर्टर को भी गिरफ्तार करें, ड्राइवर कंट्रोल को भी गिरफ्तार करें, हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने किरायों में कमी न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर रखा है। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21 न्यूज़ कराची। तालीमी मैदान से खबर शामिल करेंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात हुए, जिसमें फेलियर, रिपीटर और इम्प्रूवमेंट के पर्चे हुए। नाजिम इम्तहानात ने लियाकताबाद और नाजमाबाद के इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया और सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दी। इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात के चौथे रोज भी नाजिम इम्तहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो मुतहरिक दिखाई दिए। ज़हीरुद्दीन भुट्टो ने उस्मानिया गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज और सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के इम्तहानी मरकज का दौरा किया। उनका कहना था कि अब तक कोई बद इंतजामी सामने नहीं आई, अलबत्ता अगर सेंटर्स में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई तो एक्शन लिया जाएगा। हमारे पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत मौसूल हुई नहीं है, अगर हुई तो उस नौबत के हिसाब से जो है ना वो हम एक्शन लेंगे ज़रूर, कि किस किस्म की जो है ना वो वहाँ पे मिसहैप हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसी हवाले से। जिना गवर्नमेंट कॉलेज में भी इम्तिहानी सेंटर में नकल की रोकथाम के लिए सख्त इकदामात उठाए गए हैं। प्रोफेसर बाबर जिना कॉलेज का कहना था कि फर्स्ट ईयर का इम्तिहान सेकंड ईयर के बाद लिए जाने का फैसला तालिब इल्मों के हक में है। इम्प्रूवमेंट और सेकंड ईयर, चाहे वो फर्स्ट ईयर का फेलियर हो चाहे सेकंड ईयर का, इम्प्रूवमेंट और सेकंड ईयर पहले लिए जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि स्टूडेंट की असेसमेंट कॉपीज़ की जल्दी हो जाए, रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, ताकि वो अपने प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिला ले सके। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 12वीं जमात के इम्तहानात सूबे भर में जारी हैं, जिसमें अब तक कोई बदनज़मी सामने नहीं आई है। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़ कराची। और शहर कायद में चावल की कीमतों में इजाफा और दालों की कीमतों में कमी वाक़ हो गई। मुख्तलिफ इक़साम की चावल की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो गया, जबकि दालों की कीमतों में 40 रुपये तक कमी कर दी गई।
कराची में रिटेल की सतह पर सुपर बासमती चावल 20 रुपए इजाफे से 380 और सेलर चावल 15 रुपए महंगा होकर 340 रुपए किलो हो गया। टोटल चावल 20 रुपए महंगा होकर 200 रुपए और पोनिया 20 रुपए इजाफे से 230 रुपए किलो तक पहुंच गया। दूसरी जानिब दालों की कीमतों में कमी वाक़ हो गई। चने की दाल 20 रुपए कमी से 200 और मूंग की दाल 40 रुपए कमी से 240 रुपए किलो पर आ गई। मसूर की दाल 20 रुपए सस्ती होकर 245 और मलका मसूर 15 रुपए कमी से 225 रुपए किलो हो गई। अरहर की दाल 420 रुपए से बढ़कर 480 रुपए किलो पर पहुंच गई, जबकि माश की दाल 440 रुपए पर बरकरार है। अभी हो सकता है डॉलर कम हुआ है 25 रुपए और अल्लाह करे हो जाए तो फिर और कम हो जाएगी। 20-20 30-30 रुपए दालें गिरी है। अभी जैसे माश की दालें वो नहीं गिरी है रेट, वो 440 430 रुपए ही चल रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई से इस हद तक आजिज आ चुके हैं कि दाल चावल खाना भी मुहाल हो गया है। दाल चावल तो बहुत महंगा हो गया है, गरीब आदमी नहीं खा सकता। ते टोटा जेड़ा वो नहीं बंदा खा सकता, जेड़े मुर्गे नहीं खाते वो नहीं बंदा खा सकता। गरीब आदमी क्या करे। बच्चे खाते हैं दाल चावल वगैरह या खिचड़ी वगैरह या दाल चावल वगैरह खाते हैं। चावल बहुत महंगा है। महंगाई कम होनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि आवाम का एहसास करे। हम हुकूमत दावे करती है कि हम आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी की जाए ताकि महंगाई से रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची के अवाम ने मुर्गी महंगी होने के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली बायकॉट मुहिम की हिमायत का ऐलान कर दिया। लोग कहते हैं कि बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए, वरना ये महंगाई नीचे आने वाली नहीं है। तक हम बायकॉट नहीं करेंगे तो दुकानदार अपने रेट कम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी फ्रूट के रेट बढ़े थे और लोगों ने बायकॉट किया था तो इसलिए फ्रूट के रेट नीचे आ गए थे। तो इसी तरह हमें चाहिए आवाम को तो थोड़ा सब्र करें और बायकॉट करें, जिससे हमें रिलीफ मिल सकता है। पोल्ट्री फार्म्स के जो रेट बढ़ रहे हैं, ये इशू आ रहा है, तो हम अगर 3 महीना ज़्यादा नहीं 3 महीने में बायकॉट करेंगे तो खुद ही इनके रेट कम हो जाएंगे। हम बायकॉट का हिस्सा बनेंगे और जब तक ये रेट कम नहीं होंगे हम चिकन का बायकॉट करेंगे। और ये अच्छी कैंपेन चल रही है, उसका साथ देना चाहिए और उसकी कैंपेन में हिस्सा भी लेना चाहिए। वो इसलिए लेना चाहिए कि आप उसकी कैंपेन में हिस्सा लेंगे और उसकी प्राइस में थोड़ी कमी आएगी। और क्योंकि कुछ पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि उसकी प्राइस में कमी करे ताकि सब अफोर्ड कर सके इस चीज़ को। और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों ने कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। एक माह में 70 सीसी मोटरसाइकिल 5,000 से 7,000 तक और 110 से 125 सीसी की मोटरसाइकिल 14,000 से लेकर 30,000 तक महंगी हो गई। ताजिर रहनुमा अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि मोटरसाइकिल की सेल इस हद तक कम हो चुकी है कि कारोबार करना दुश्वार हो चुका। गरीब की सवारी गरीब की पहुंच से बाहर। मोटरसाइकिलें बनाने वाली कंपनियां भी आवाम की जेबें खाली करने की ठान ली। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि कंपनियों की जानिब से मोटरसाइकिलों के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके बायस मोटरसाइकिलों की सेल 90% से जायद कम हो चुकी है। एक माह में 70 सीसी मोटरसाइकिल 5,000 से 7,000 तक और 110 से 125 सीसी की मोटरसाइकिल 14,000 से लेकर 30,000 तक महंगी हो गयी। इजाफे का सिलसिला तो ये रवा साल से बढ़ता जा रहा है और सेल की भी कम होती जा रही है। तकरीबन आप ये समझ लें कि चाइना की मोटरसाइकिल की अगर बात करें तो 5 से 7,000 रुपये पर मंथ, और अगर बड़े ब्रांड की बात करें, मतलब बड़ा ब्रांड का मतलब जैपनीज़ ब्रांड की बात करें तो वो तकरीबन 14,000 से लेकर 30,000 तक का फ़र्क आता है हर माह। और उसकी वजह से सेल जो है वो तकरीबन 90% कहते कहते आज 98% ख़त्म हो चुकी है। शहरी कहते हैं कि अपनी इस्तात के मुताबिक मोटरसाइकिल खरीदने जब मार्केट का रुख करते हैं तो कीमतें सुनकर ही होश उड़ जाते हैं। इधर जब हम आए हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तकरीबन भी पिछले साल के मुकाबले में इस बार 20 से 25,000 रुपये का फ़र्क आ गया है। पुरानी लेने का सोच रहे हैं, थोड़ी स्लाइडली यूज़ ले लें, थोड़ी चली भी ले लें या फिर इंस्टॉलमेंट का चक्कर सीन करें। लेकिन तकरीबन हमने यहाँ पे मोटरसाइकिल मार्केट में मालूम किया बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंस्टॉलमेंट पे भी गाड़ियाँ नहीं दे रहे, इंस्टॉलमेंट भी बंद कर दिए। ताजिरों और डीलर्स का हुकूमत से मुतालबा है कि ज़राए आमदोरफ्त की कीमतों में कमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों का सफ़र करना आसान हो सके। शहर में बढ़ती लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। शहरियों ने बिजली की लोड शेडिंग के औकात में गर्मी से बचने के लिए बैटरी वाले पंखों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग, शहरियों ने भी हल ढूंढ निकाला। शहर में गर्मी बढ़ने के साथ ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है, जिसके बायस बैटरी वाले पंखों की मांग में भी इजाफा हो गया। दुकानदारों ने बैटरी वाले पंखों की फरोख्त में इजाफे का बताते हुए इसकी कीमतों के बारे में भी बताया। ये वाला फ़ैन 15,000 का है। अगर इसमें आप ये वाला लेंगी तो ये वाला है 12,000 रुपये का। इसमें इससे छोटी बैटरी है, और अगर और इससे छोटा चाहिए तो वो सामने रखा हुआ है, वो वाला 9,000 रुपये का, उसका 1 घंटे बैकअप है।
शहरियों ने भी महंगाई का शिकवा करते हुए पंखों को गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग का हल करार दे दिया। मैंने एक चार्जिंग फ़ैन लिया था, वॉल फ़ैन चार्जिंग, तो वो तो अच्छा है, लेकिन ये कि दोबारा से मुझे उसको और हैं तकरीबन 3 साल, लेकिन दोबारा से जो है ना मुझे बैटरी चेंज करनी पड़ी थी। वजह ये लाइटें बहुत जा रही है, ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे चल जाता है बैटरी। बैटरी वाले पंखों का इस्तेमाल घरों के साथ साथ दुकानों और ठेलों पर भी किया जाता है, जो कि 2 घंटे चार्ज होने के बाद तकरीबन 3 से 5 घंटे चलते हैं। कैमरामैन वकास लोधी के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। मुर्तज़ा वहाब ने नॉर्थ कराची में शेरो शहीद पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुशीर कानून और तर्जुमान सूबाई हुकूमत कहते हैं कि 100 पार्क का हदफ बना रखा है। मुर्तज़ा वहाब ने हाफिज नईम की PTI क़यादत से मुलाकात पर तनकीद भी की। शहर कायद में पार्क्स की सेंचुरी मुकम्मल करने का अज़्म, मुर्तज़ा वहाब ने एक और पार्क का इफ्तिताह कर दिया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11L में शेरू शहीद पार्क का इफ्तिताह हो गया। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने अमीर जमात इस्लामी कराची को भी तनकीद का निशाना बनाया और बोले, हाफिज नईमुर रहमान PTI के चेयरमैन के साथ तस्वीर देखकर दुख हुआ। हाफिज नईमुर रहमान मेयर बनने के चक्कर में शेरवानी पहनने के लिए बेताब हैं। ये नहीं हो सकता हाफिज नईमुर रहमान साहब कि आप रीगल चौक पर खड़े होकर कहें कि इमरान खान गलत है, PTI गलत है, कराची की आबादी सही नहीं गिनी गई। ये नहीं हो सकता कि आप मीना बाजार पर खड़े हों और कहें कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दुश्मन है, मुसलमान का दुश्मन है, और फिर अपने वोट की हवस में, अपने इक़्तिदार की हवस में उस आदमी के पास जाके बैठ जाएं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमने 1.5 साल कबल 100 पार्क को तामीर करने का चैलेंज लिया था। जो वादा किया उस वादे को वफा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 67वां पार्क हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उसका बाज़ाब्ता रिहैबिलिटेशन के बाद इफ्तिताह कर दिया है। इन पार्क्स के अंदर जो सबसे बड़ा मसला था इनको लुक आफ्टर करने के लिए, वो ये था कि हमने अहले मोहल्ला को उसके साथ ऑन बोर्ड किया और हमने हर इलाके में एक बागबान कमेटी बनाई ताकि वो अहले मोहल्ला पार्क्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर सके और जो पार्क्स के मामलात हैं उन मामलात को हल कर सके। तकरीब के दौरान इलाका मकीनों ने मसाइल के हवाले से शिकवे किए, जिस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने पीने के पानी समेत दीगर मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। कोरंगी नासिर जम के करीब बीच सड़क गड्ढे को ताहाल न भरा जा सका। गुज़श्ता साल बरसात के बायस पड़ने वाले गड्ढे के बायस हादसात हो चुके हैं। कोरंगी नासिर जम के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ गया। सड़क पर हादसात मामूल बन गए। गुज़िश्ता साल बरसात के दौरान पड़ने वाले गड्ढे को ताहाल भरा नहीं जा सका। ये इधर जो है ना, ये तकरीबन पिछली बरसातों में से ये गड्ढा हुआ है। अभी तक तकरीबन काफ़ी इधर हादसात हो गया। कोई मोटरसाइकिल वाले मतलब कि पैदल लोग भी मतलब अंधेरे की वजह से टूटा का के गिर जाता है, क्योंकि बिल्कुल रोड के बीच में। शहरियों का कहना था कि सड़क से गुजरने वाली मोटरसाइकिल पर खवातीन और बच्चे भी हादसे का शिकार हो चुके हैं। भाई यहाँ एक साल हो गया है और अमूमन यहाँ पे जो है ना गाड़ियाँ गड्ढों में गिर जाती हैं, रक्शे गिर जाते हैं और जो है कि बहुत बुरा हाल है। ये बहुत बड़ी चौरंगी है, लेकिन इनको कोई हुकूमत को होश का नाखून लेते नहीं है। ये इतना बड़ा गड्ढा है, अभी बारिशों का भी टाइम चल रहा है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस गड्ढे को भरा जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन इमरान AK के साथ मोहम्मद हम्मा, सिटी 21। डॉलन्स ने अपने डीलर्स के लिए दिल खोल के खेलों के नाम से इंटरेक्टिव खेलों के लिए मुकाबले मुनक्किद किए, जिसमें डॉलन्स के 1800 से ज़ायद डीलर्स नेटवर्क को शामिल किया गया है। डॉलन्स के एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, पर्सनल केयर की मसनूआत और मल्टी कुकर के आला तरीन फीचर्स पेश करने के लिए निजी बैंक्वेट में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए और जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। और बार्टर तिजारत के हवाले से अहम पेशरफ्त। वजारत तिजारत ने रूस, ईरान, अफगानिस्तान के साथ बार्टर ट्रेड के लिए SRO जारी कर दिया। बार्टर ट्रेड के जरिए पाकिस्तान को LNG समेत तवानाई की अपनी ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी।
پاکستان بارٹر سسٹم کے تحت ایران اور روس سے خام تیل LNG LPG درآمد کر سکے گا۔ افغانستان ایران افغانستان روس کے ساتھ اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت میں آسانی ہوگی۔ حکومت کی جانب سے ایکسپورٹ کے لیے 26 اشیاء کی فہرست تیار کر لی گئی۔ پاکستان ان ممالک کو گوشت، پھل، سبزیاں، چاول سمیت ٹیکسٹائل مصنوعات، پرفیومز، کاسمیٹکس، آلات، جراحی کٹلری برآمد کر سکے گا۔ پاکستان اب ایران افغانستان کو کھیلوں کا سامان برآمد کر سکے گا۔ افغانستان سے پھل، میوہ جات، سبزیاں، دالیں، آئل، سیڈز درآمد ہوں گی۔ بارٹر ٹریڈ سسٹم کے تحت افغانستان سے منزلز، میٹلز اور کوئلہ درآمد کیا جا سکے گا۔ پاکستان ایران سے خام تیل LNG LPG منگوا سکے گا۔ ایران سے کیمیکلز، پروڈکٹس، کھادیں، پھل، سبزیاں، مسالے درآمد کی جا سکیں گی۔ پاکستان روس سے خام تیل LNG LPG درآمد کر سکے گا۔ روس سے بارٹر سسٹم کے تحت گندم، دالوں سمیت صنعتی مشینری بھی منگوائی جا سکے گی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ کوئٹہ میں منعقدہ نیشنل گیمز میں کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے کراچی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شمشیر زنی کے مقابلوں میں کراچی کے 11 کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور تمغے حاصل کیے۔ شمشیر زنی کا فن ہزاروں سال پرانا ہے، جو میدان جنگ سے نکل کر اب کھیل کے میدانوں میں زندہ ہے۔ کوئٹہ نیشنل گیمز میں شمشیر زنی کے مقابلے ہوئے، جس میں کراچی کے 11 کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی دکھا کر سلور اور برونز میڈل حاصل کیا۔ کھلاڑیوں کی کامیابیوں کو سراہنے اور حوصلہ افزائی کے لیے یونین کلب میں تقریب رکھی گئی۔ ہم لوگ کافی عرصے سے کھیل رہے، لیکن ابھی نیشنل گیم میں جاتے ساتھ ہی جب ہم لوگ گئے تو ہم نے جو ہے سب کو ہی آلموسٹ ہرایا، صرف ہم شاید ہی ہارے ہیں پنجاب سے، ورنہ تو ہمیں کوئی ہرا نہیں پایا۔ ہم لوگ ابھی نیشنل کھیل کر آئے، میں نیشنل چیمپئن رہا، سندھ میں میری سب سے ہائیسٹ رینکنگ رہی، تو میں نے 3 سلور لیے ہیں اور میں نے بلوچستان کو بھی ہرایا، KPK کو بھی ہرایا اور پنجاب کو بھی ہرایا۔ میرے لیے مشکل تھا لیکن میں نے کرا۔ میں نے 4 برونز میڈل حاصل کیے ہیں، 2 انڈیویجول اینڈ 2 ٹیم میں۔ میں نے بلوچستان، گلگت اور ایسے دیگر شہروں کو ہرا کے لیا ہے۔ شاید میں لاہور یا پنجاب سے ہی آ رہی ہوں، ورنہ سب سے جیتی ہوں۔ سندھ فینسنگ ایسوسی ایشن کے سربراہ ڈاکٹر آفتاب امام اور سیکرٹری محمد تقی نے کہا کہ بچوں نے بہت محنت کی، جس کا پھل ملا۔ ہماری بچیوں نے بہت سارے برونز میڈلز لیے ہیں، ہمارے بچوں نے انڈیویجول ایونٹس میں، اور آپ یہ دیکھیے کہ منیمم ریسورسز کے ساتھ انہوں نے زبردست پرفارمنس دی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس پر توجہ دیں تاکہ یہ بچے آئندہ گولڈ میڈل لیں۔ میرا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے سلور لیے ہیں، تو اس کو میں نے ایک بات اس سے وعدے کے ساتھ کہی کہ تم نے کچھ نہیں کرنا ہے، جو میں نے سکھایا ہے بس وہ کرنا ہے، اس پر تم ہار جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں چاہتا ہوں بچوں کو وہ چیز سکھائی جائے، وہ چیز بتائی جائے جس سے ان کو میڈل میں آسانی ہو، جیتنے میں آسانی ہو۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ اگلی بار زیادہ محنت کر کے گولڈ میڈل لانے کی کوشش ہوگی۔ قومی سطح میں شمشیر زنی میں بہترین کارکردگی دکھانے والے چیمپئنز بین الاقوامی سطح میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے حکومتی تعاون کے منتظر ہیں۔ کیمرہ مین ابراہیم خان کے ساتھ حمدہ نثار، سٹی 21۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔